नमस्ते एंड वेलकम टू बात करियर की विद माय मेंटोर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम करियर चॉइसेस और उन जर्नी के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ को शेप करती है। ये प्लेटफॉर्म माय मेंटोर के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, जिसका एम है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सही टाइम पर सही गाइडेंस देना, ताकि करियर डिसीजंस कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाएं। इस सीरीज में हम लेके आते हैं रियल स्टोरीज, रियल इंसाइट्स एंड रियल गाइडेंस उन लोगों से जो खुद वो रास्ता चल चुके हैं। सो हियर टुडे वी हैव एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने फैशन एजुकेशन के फील्ड में काफी इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन दिया है। यूजुअली वी डू दिस दैट वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट ourselves, but today I would like mom to introduce herself and share her story with us. Hello everyone, I am Professor Dr. Pooja Verma. Currently I am heading Amity School of Fashion Technology, Lucknow campus. Along with fashion, I am also heading Amity School of Fine Arts. And I am one of the founder director because I joined Amity in 2005 and our department also started in 2005. So since then, it is almost 20 years long journey. Thank you so much, ma'am, for telling us about this. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर एकेडमिक्स तक रही है। सो एजुकेशन में आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? Actually, before joining Amity, I was in Bangalore. There I was having my design studio called Motchick at Commercial Streets. And I also had my institute, Astha Institute of Creativity, where I was doing the design training and all that. So it was going well, everything was okay. Then in 2004, I was invited by Lucknow Khadi board to participate in an event which happens during the Lucknow festival. So for that reason, I came back to Lucknow and we were meeting the Khadi personals and all that stuff. I was started designing also here. And I vividly remember this show happened on 10th January 2005. And it was an immensely successful show. I had many national, international models came to Lucknow and show was a real hit. And there I experimented with chicken embroidery on Khadi fabric. So that was a innovation 20 years back, which I did. So it was hit, and then one day casually I saw ad of Amity in Times of India. They were looking for directors and faculty and all that, and I just casually applied for it. And next day I got a call. हम आ भी गए यहाँ पे. General Lori was there. हमारे जो chairman है यहाँ के Dr. Asim Chauhan, he was also there. We had a casual talk, and next day he said कि we would like you to join as a head of the department. And आई थिंक कि ये डेस्टिनी थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि हम कभी ऐसे किसी जॉब में जाएंगे, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट जॉब एंड होपफुली रिमेन माय लास्ट जॉब. तो समथिंग मतलब होता है ना, कुछ चीज भगवान बनाता है तो ऐसे होते चले जाता है. एंड आई जॉइंड एंड नेक्स्ट डे 1 जुलाई को जब हम आए, 1 अगस्त को व्हेन आई केम हियर, so I was handed over 14 students in one classroom. And right now what you see, my department, it is all a long journey of 20 years. So this is how from entrepreneurship to industry I came into academics. स्टार्टिंग कैसे हुई है, मतलब आपको क्यूरियोसिटी कहाँ से मिली? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो फॉर द फैशन? बहुत किडिश है, बट आई टेल यू, जब हम छोटे थे तो आई यूज्ड टू डिजाइन माय डॉल्स, उनके लिए कपड़े बनाना, एंड यूज्ड टू स्टिच स्मॉल स्वेटर्स फॉर देम एंड ऑल दैट. And you won't believe कि when I was 10 or 12 years old maybe, I started designing for myself. और हम उस समय तो जनरल वैसा मार्केट नहीं था कि आप जाइए और गारमेंट मतलब ड्रेस खरीद के लाइए. वी यूज्ड टू बाय फैब्रिक. तो हम टेलर के पास बैठ के आई यूज्ड टू टेल हिम इसको ऐसे करो वैसे करो. आई थिंक कि इट वाज सिंस देन, मतलब मुझे पर्टिकुलरली सोचना नहीं पड़ा कि आई विल गो इनटू दिस. इट हैपेंड ऑन इट्स ओन. And ma'am, who was the person behind you, like who supported you with all these things? Supported my family, of course. Okay. And do you have I come from the business family. Okay. So it was always there in our blood कि हाँ सबको business. My father used to say मेरे बच्चे job नहीं करेंगे, but see how things happen. I'm currently in a job. So this is how things are. Okay. And आप अपने leadership style को कैसे मतलब describe करना चाहेंगे? It's very tough question क्योंकि there are different kind of people. हर तरह के बच्चे आते हैं. Yes. My main observation is I try to understand the kids background कि वो किस background से आ रहे हैं, what exactly they need. So this is the thing which I keep in mind before doing anything. हम जब आपने institution build किया from scratch, तो सबसे tough आपके लिए क्या रहा? देखो tough
20 साल पहले भी था और अभी भी वही चीज टफ है, टू मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड फैशन। आज के दिन भी पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, अलाइड सर्विसेज में जाएं, बट फैशन दे डोंट अंडरस्टैंड। जबकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में फैशन मतलब सबको पता है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या इसका बेनिफिट्स हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं, बट स्टिल आज भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जब हमारा एडमिशन सेशन होता है, वो कहते हैं कि मैम मेरी बच्ची फैशन डिजाइन करना चाहती है, प्लीज उसको बताइए कि वो ना करे, क्योंकि हमारे घर में कोई फैशन डिजाइनर नहीं है। हम उनसे ये कहते हैं आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे को बताएं कि वो फैशन डिजाइन ना करे। एंड जस्ट 4-5 years बैक देयर वाज अ गर्ल, शी स्टेड एट होम फॉर 2 years कि हमको करना है तो फैशन ही करना है, उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। एंड फाइनली उसकी मदर ने कहीं कहीं से पैसा जोड़ वोड़ के फी वी करी एंड उसने किया फाइनली, एंड शी पास्ड आउट विद फ्लाइंग कलर्स, शी वन अवार्ड आल्सो। तो ऐसे बच्चे आज भी हमारा फर्स्ट ईयर जो बैच है उसमें से अराउंड 25% स्टूडेंट्स आर सच जो पेरेंट्स से लड़ के आए हैं कि उन्हें फैशन करना है, पेरेंट डजंट वांट देम टू गो फॉर फैशन। एंड हाउ डू यू कन्विंस द पेरेंट्स? पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि वही बात है ना 3 इडियट्स वाला, कि yes, फॉलो योर पैशन। तो हम उनको वही बताते हैं, अगर बच्चे आप जबरदस्ती कुछ करवाओगे तो बच्चे का उसमें दिल नहीं लगेगा, दैट रिजल्ट वोंट बी गुड। देखो एट द एंड ऑफ द डे सबको यही चाहिए ना कि अच्छा जॉब, अच्छा करियर, और अगर आपके दिल का हो तो यू विल बेटर। तो दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग पेरेंट्स, एंड देन लेटर ऑन पेरेंट्स आल्सो कम टू बी कि मैम आपने कहा, मैंने मान लिया और मेरा बच्चा इज डूइंग सो गुड। हमारे एलुमनाइज के पेरेंट्स कभी कभी मिलते हैं एंड दे आर सो हैप्पी कि उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक सम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैम मैं फैशन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, कि ये एक प्रोफेशनल करियर हो सकता है कि नहीं। तो उन स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस? देखो पैशनेट का मतलब ये है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स, एक तो आप खुद फैशनेबल हो, यू वांट टू वेयर फैशनेबल क्लोथ, यू वांट टू लुक गुड एंड ऑल दैट, एक ये फैशन है। एक ये है कि हम तुमको देख हम कह रहे हैं अच्छा ये पर्पल की जगह अगर रेड पहना होता तो ये ज्यादा अच्छी लगती, अगर वो एटीट्यूड है हमारे में तो आई शुड गो फॉर अ करियर इन फैशन। और अगर हम अपने आप को मिरर में देख के खुश होते रहते हैं तो दैट इज फॉर माय थिंग। ओके, सो आज के टाइम में फैशन इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए क्या करना होगा मैम? जनरली कंसिस्टेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर फेलियर्स, देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स, सो मेनी बॉटलनेक्स, लेकिन आप अगर फोकस्ड हैं एंड आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है, देखो ड्रॉबैक्स हर जगह है, बॉटलनेक्स हर जगह है, कभी स्ट्रेट अवे सक्सेस कहीं नहीं है। और आजकल का इतना तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, एवरी ईयर कितने लोग फैशन डिजाइनर डिग्री ले लेके निकलते हैं। तो हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि डिग्री सबके पास होती है, फर्स्ट जॉब यू विल गेट थ्रू योर डिग्री, बट सस्टेन करना उस जॉब को, दैट इज इंपॉर्टेंट, देन योर क्रिएटिविटी एंड योर पर्सनल स्ट्रेंथ कम्स। तो यही बताते हैं कि फैशन के साथ साथ मतलब उसके साथ साथ आपको अपने को फोकस रखना है। अगर जो लोग फोकस नहीं रह पाते हैं, प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, तो दे क्विट। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो फैशन डिजाइन किया, उन्होंने प्रॉपरली किया, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे क्विट फैशन डिजाइनर, दे चूज सम अदर करियर्स आल्सो, ऐसे भी बच्चे हैं। इट्स लाइक दे आर स्टेपिंग ऑन टू बोट्स टुगेदर, नॉट एग्जैक्टली 2 बोट्स टुगेदर, कुछ कुछ के होता है ना कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उन्होंने कर लिया, फिर कुछ जॉब भी किया, बट देन डोंट फील कि हाँ इट इज नॉट फॉर मी, लेटर ऑन दे रियलाइज मे बी दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, तो दे चेंज। देखो कोई जनरल हम नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस है, अपनी जर्नी है, अपनी लाइफ है। एंड ऑल्सो मैम बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके सोचने लगते हैं कि दे शुड गो फॉर फैशन और दे शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो आपको क्या लगता है कि व्हाट ट्रिगर्स और व्हाट मोटिवेट्स अ स्टूडेंट टू गो फॉर पर्टिकुलर फील्ड? आई टोल्ड यू ना कि सोशल मीडिया मतलब वी कैन नॉट डिनाई दैट, उसके इम्पैक्ट भी है बच्चों के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया से अगर आप सोचिए कि आपका करियर फैशन में बन जाएगा तो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आप इंटरनली आपकी इनर फीलिंग है, और जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो अपने आप से आता है, आई टेल यू इवन टुडे हम कभी सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो समटाइम आई एम एनग्रॉस्ड इन द आई मीन गारमेंट व्हाट हीरोइन इज पहने हुए है, मूवी आगे बढ़ जाती है, हम उसी में रहते हैं क्योंकि देन आई रियलाइज नहीं हम तो पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं। तो अभी भी ये बात है, तो अगर आप में इतना पैशन है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना फोकस है, तो फैशन डिजाइन इज फॉर यू। और अगर ऐसी टाइम पास वाली चीज है तब योर विश।
एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत से लोग ये समझते हैं कि फैशन डिजाइन में पढ़ना नहीं पड़ेगा. दैट इज द बिगेस्ट मिथ, आई टेल यू. और हम बताएं कि जब यहाँ पे दे हैव अ रियलिटी चेक, जब आते, जब उनको पता चलता है कि उनको क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ कुछ तो छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उनसे नहीं होता है. 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये सोच के आते हैं कि फैशन डिजाइन में पढ़ना नहीं पड़ेगा. हम उनको बताते हैं कि फैशन डिजाइन में आपको फैशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आपको मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको मार्केटिंग भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है. तो इट इज वेरी मच होलसम करियर. जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उन्होंने अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वही एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे. हमारे यहाँ बच्चों को सब पढ़ना है, क्योंकि आपको फिर मार्केट भी देखना है. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आगे चल के अपना कोई ब्रांड लगाते हो, तो आपको मार्केट सर्वे करना है, मार्केट रिसर्च करना है, क्लाइंट देखने हैं, सब कुछ करना है. तो आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. टेक्सटाइल इज अ थ्योरी और टेक्निकल वर्ड, क्योंकि टेक्सटाइल में आई मीन जो IITs हैं उसमें टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी निकलते हैं. IIT की डिग्री फॉर टेक्सटाइल्स भी है. तो टेक्सटाइल अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ऑल्दो नॉट इन दैट एक्सटेंट कि हम उसको उतना पढ़ाएं, लेकिन बेसिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है उनको. टेक्सटाइल इज अ सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर से एंड सेमेस्टर तक बच्चे पढ़ते हैं. तो दिस इज इट्स अ होलसम करियर. तो बच्चों को हम यही बताते हैं कि जो ये सोच रहे हैं टाइम पास है, इट्स नॉट टाइम पास, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग. क्योंकि बच्चे असाइनमेंट्स करते हैं तो यू वोंट बिलीव, मेरे को पेरेंट्स के कभी कभी कॉल आते हैं कि रात भर बच्चा काम कर रहा है, नेक्स्ट डे स्कूल कैसे जाएगा, कॉलेज मतलब कैसे आएगा, असाइनमेंट्स हैं. मतलब एवरीवन वांट्स टू डू बेस्ट. कोई सेट रूल नहीं है कि को ब्लैक ही करना है तो सब ब्लैक ही करेंगे. एज पर योर क्रिएटिविटी, योर डिजाइन, यू कैन यूज मेरिट ऑफ कलर्स. तो सबका अलग है, कोई कट पेस्ट नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, आपको अपना ही करना है. तो इट्स वेरी एंगेजिंग. और जो बच्चे सच में इसमें करना चाहते हैं, दे डू वंडर्स. जैसे कि मैम आपने कहा कि फैशन में पढ़ना भी पड़ता है, हमें पढ़ना बहुत पड़ता है हमें. सो ये स्टूडेंट्स का स्ट्रगल रहता है एक क्रिएटिविटी और एकेडमिक्स के बीच में, फैशन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन फील्ड. सो ये कैसे मैनेज? नहीं, आई विल नॉट से कि स्ट्रगल, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है. तो इसमें स्ट्रगल वाली बात नहीं है. जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, जब फैशन मार्केटिंग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब कि अगर वो अपने गारमेंट बना रहे हैं तो हाउ दे विल मार्केट दैट गारमेंट. तो कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ इंटरलिंक्ड है. अगर फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आप सिल्क फैब्रिक यूज करोगे गारमेंट के लिए तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, अगर आप सस्टेनेबल फैब्रिक यूज करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉस्टिंग क्या होगी. एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, कोई चीज अलग अलग नहीं है इसमें. अगर आप एक फैशन स्टूडेंट का आइडियल मतलब कुछ डेली रूटीन बता सकते हैं हमें? डेली रूटीन तो नॉर्मली होता है, बट एक चीज जो उनमें होनी चाहिए, दैट इज ऑब्जर्वेशन. क्योंकि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपने फैशन करियर चूज किया है तो यू शुड कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग. अब आप सड़क पे भी जा रहे हैं तो ऑब्जर्व व्हाट पीपल आर वेयरिंग, तभी हमको पता चलेगा. नहीं, अगर इसने ग्रीन की जगह रेड पहना होता तो ज्यादा अच्छा लगता, या लॉन्ग की जगह शॉर्ट पहना होता, या हेयर स्टाइल ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा लगता. आप जहां जाओ ऑब्जर्व करो लोगों को, देन ओनली यू विल इवेलुएट योरसेल्फ कि हाँ आप कहाँ गलत हो, कि ये अगर ये सही है तो अच्छा मैंने सोचा था ये ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा. तो ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट. दे शुड कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स. घर में ऑब्जर्वेशन. देन आफ्टर सेकेंड ईयर दे शुड स्टार्ट टेलिंग देयर मॉम कि क्या पहनो क्या ना पहनो, किस ओकेजन में क्या पहनो, कैसे क्या कलर्स हैं, सिस्टर्स को बताएं. ये तो ये इट्स, और ये एक ऐसा करियर है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल यू कैन डू लॉट्स. कि आप अपने घर में अपनी जो अपनी स्किल्स हैं वो अपने घर में यूज कर रहे हो. एक ऐसा यही करियर है कि अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, स्टिल यू कैन मेक वंडर्स. So ma'am, can you please tell me something about a student that you came across who was very weak but still was passionate about fashion? See, I remember one girl, Satyamvada Singh, एक बच्ची थी हमारे यहाँ, 2008 में उसने ज्वाइन किया था. She came from a small town, मोटी मोटे दो चोटी एंड बहुत ही शैबिली ड्रेस्ड. और आज की डेट में शी हैज वन ब्यूटी पैजेंट्स, मिस इंटरनेशनल का उसके पास एक है अवार्ड है. बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उसकी पूरी फिल्म्स आई थी, टीवी में भी उसने काम किया. मतलब एग्जैक्टली चेंज्ड. जैसी वो आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट डे उसका जो था, उसकी फोटो बाहर लगी हुई है लेस्टर्स एलुमनाइज में. तो शी हैज डन वंडर, पूरा चेंज हो गई, पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया.
एंड कैन यू प्लीज टेल मी वो चेंज कैसे आया, वो चेंज एक्चुअली यहाँ पे जैसे वो आई तो ड्यूरिंग हमारा, एक्चुअली हम एमिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लासरूम स्टडी के साथ साथ वी गिव देम मैक्सिमम एक्सपोजर आउटसाइड, कि पार्टिसिपेट करो जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे लुलू फैशन वीक हो रहा है या टाइम्स फैशन वीक हो रहा है, तो आई डेफिनेटली सेंड माई स्टूडेंट्स टू वर्क एज अ वॉलंटियर्स। तो उनको रियल पता चलता है एग्जैक्टली क्या है, कितना हार्ड वर्क है। जो एक शो आधे घंटे में खत्म हो जाता है, उसके पीछे का हार्ड वर्क उनको तब पता चलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको एक्सपोजर बहुत मिलता है। और एवरी ईयर, आई मीन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, एवरी ईयर उनको इंटर्नशिप पे हम लोग भेजते हैं। कभी रिटेल में भेजते हैं, कभी अंडर सम डिजाइनर, कभी इंडस्ट्री में भेजते हैं। तो वो इंडस्ट्री एंड अकेडमिक्स का जो मिक्स है वो वेरी वेल मैनेज्ड इन एमिटी। तो बच्चों को ये लगता नहीं है कि दे आर मिसिंग आउट समथिंग। जब वो पास आउट होकर निकलते हैं तो कुछ नया नहीं रहता है उनके लिए, एंड दे कैन चूज देयर पाथ कि वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या खुद अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं या सेल्स में जाना चाहते हैं, तो ये दे डिसाइड। अगर आप मतलब पास में जाके अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहेंगे या गाइड करना चाहेंगे तो क्या देंगे? I would say कि focus should be there, because earlier I was not focused, क्योंकि out of, although I was creative, I was doing all these things, लेकिन tell you frankly, I wanted to go into allied services. I was very good in studies, तो हम उसी में जाना चाहते थे, but as I told you, my father said कि no jobs for my kids, तो वो उसी में drop हो गया। तो फिर it was my second option. Okay. So this is how things happen. Also, ma'am, like, do you have any regrets that you didn't go to that? No regrets. Even, you know, even in Amity, I think this is my own, because from the scratch I have built this department. तो जब फर्स्ट को सैलरी क्रेडिट होती है तब पता चलता है आई एम वर्किंग फॉर समवन, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स माय ओन। सो मैम, आज के टाइम में सक्सेस का रियल मीनिंग आपकी तरफ से क्या होगा, क्या हो सकता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज सक्सेस का कोई पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ को लॉट ऑफ सक्सेस देयर स्टिल दे आर अनसेटिस्फाइड। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द सक्सेस फॉर मी। Like that was a really nice question answer session with you. Okay, so we'll start here now with a very interesting part of the podcast, which is the rapid fire round. Okay. Hope you'll enjoy it. So shall we start now? Yeah. Okay. All right. Sketching या digital design? Both. Okay. Creativity या discipline? Creativity. Okay. Classroom learning या industry exposure? Both. वन हैबिट जो हर फैशन स्टूडेंट को डेवलप करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन। ट्रेडिशनल या कंटेम्प्रेरी डिजाइन? कंटेम्प्रेरी विद द फोकस ऑन ट्रेडिशन। स्ट्रिक्ट मेंटोर या फ्रेंडली गाइड? फ्रेंडली गाइड। वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेस डिजाइनर? फोकस एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। एंड फैशन शोज या पोर्टफोलियो बिल्डिंग? फैशन शोज, that gives lot many, I mean, exposure. And also, ma'am, are you a coffee person or a tea person? Depends on my mood. Okay. May I ask? Green tea. Like, Green tea. Okay. Antioxidant green tea. Yes, definitely. So thank you so much, ma'am, for your time, because it was a really interesting session with. So now today we come to the end of this session here. आज की conversation यही हम खत्म करते हैं. Ma'am, thank you so much for sharing your journey with us and such helpful insights. It was pleasure talking to you all. Thank you so much. As we come to the end of today's episode, one thing stands out. Careers in creative fields like fashion are not just about talent, they are about vision, persistence, and the courage to express yourself. A heartfelt thanks to you, ma'am, Dr. Professor Pooja Verma, ma'am, for sharing such valuable insights and experiences with us today. Your journey is truly inspiring for every aspiring creative professional. To all our viewers, remember, your career is not defined by conventional paths, but by your passion and the effort you put into it. Explore, experiment, and most importantly, believe in your creativity. And if you ever feel unsure, my mentor is always here to guide you, because the right direction can transform your future.